Hello students, in this video we are going to discuss solution for the ISC physics paper from the year 2020. In this video we are going to discuss the B part of question number 1. If you haven't yet watched A part of question number 1, you can click on the top right hand corner I button to find the link over there. Or what you can do, you can also go on to the description box and you can find the link of part A of question 1 to be listed over there. Now students, the part B first question says state Gauss theorem. Now what do we mean by the term state? A statement means the child or the learner can state the theorem in words और in mathematical form. तो यहाँ पर बच्चों लिबर्टी है आपको स्टेट जब कह दिया जाता है टू स्टेट आइदर इन वर्ड्स और what you can do, you can state it also in mathematical form. तो ध्यान रखिएगा दोनों ही फॉर्म चलते हैं. जब भी वर्ड आपका स्टेटमेंट आ जाता है तो आप उसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी स्टेट कर सकते हो बच्चों और वर्ड्स में भी स्टेट कर सकते हो. अब ध्यान ये रखना है कि स्टेटमेंट जब भी आप वर्ड्स में करोगे तो उसके कुछ ना कुछ की वर्ड्स होते हैं. सो व्हेनेवर यू आर स्टेटिंग एनी थ्योरम, एनी लॉ, the keywords must be there. So what I'm going to do, I'm going to first state Gauss theorem in words and then I will highlight the key points or keywords, and once you have understood or you have taken a note of it, so remember those keywords are going to play a significant role towards your marking. तो बच्चों चलिए देखते हैं Gauss theorem क्या कहता है. अगर आपने Gauss theorem नहीं पढ़ा हुआ है तो please go through the videos given in this channel. You can find out those videos in the playlist of electrostatics and go through it. बच्चों Gauss theorem state करता है, Gauss theorem states that the total electric flux, passing through. तो अब बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स. किससे पास कर रहा है? पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, पासिंग थ्रू एनी. अब नेक्स्ट कीवर्ड जो इंपॉर्टेंट आ रहा है बच्चों वो क्या है? क्लोज्ड सरफेस. अगर सरफेस क्लोज्ड नहीं है तो गॉस थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी खत्म हो जाती. तो पहला कीवर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट था, that is the total electric flux. Gauss theorem is talking about the total electric flux passing through any closed surface is directly proportional to या is equal to 1 upon epsilon naught times, is directly equal to 1 upon epsilon naught times the net charge. अब बच्चों नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट कीवर्ड जो आपके टीचर या जो भी पर्सन पेपर को चेक कर रहा होगा वो देखेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज. तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे नेट वर्ड का होना जरूरी है. सिर्फ चार्ज कह देने से गॉस थ्योरम करेक्ट नहीं होगा और आप मार्क्स लूज कर जाओगे. सो गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज enclosed inside the closed surface. Lies the closed surface. So students kindly take note of three very important keywords. First, Gauss theorem is talking about the total electric flux which happens to pass through any closed surface and then is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed inside the closed surface. Now mathematically one can also state the Gauss theorem as total flux. So see what I am doing when I am writing down that mathematical statement. I am writing down phi, that is the symbol for electric flux, and writing down that total. So this keywords comes and play the significant role. Total flux is equal to 1 upon epsilon naught the total charge enclosed. So see what I am doing, I am putting up a sign of epsilon. This sign epsilon, this sign of sigma indicates that I am talking about the total charge.
1 upon total charge enclosed. So what I'm doing, I'm writing sigma q enclosed upon epsilon naught. So this is the mathematical statement of Gauss theorem, or one can also rewrite it as integral E डॉट ds. अब बच्चों इस तरह से लिखने का मतलब क्या हो गया, E डॉट ds क्या है, E डॉट ds फ्लक्स है, छोटा सा फ्लक्स, और जब मैंने उसके ऊपर इंटीग्रल का साइन लगा दिया तो टोटल फ्लक्स हो गया. तो दिस इंटीग्रेशन साइन इज देयर टू इलस्ट्रेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल फ्लक्स, and this circle is there to tell you that I am talking about this total flux passing through any closed surface is equals to the total charge enclosed. The total charge enclosed. So here total charge enclosed upon epsilon naught. So this is the mathematical statement of the Gauss theorem. If you don't want to get into this much of complexity of writing down the mathematical statement, then you can also use the statement that I've just now mentioned in the word format, that Gauss theorem states that the total electric flux passing through any closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total or the net charge enclosed inside the closed surface. So this is the statement of Gauss theorem. Take a note of it. So students, when you are talking about a statement, most of the time it happens you miss the keywords, and due to that keywords that are missing, you lose the marks and you feel that you have been not been rightly justified with your marks. तो बच्चों इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी मैं कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं तो उसके कीवर्ड्स को आप जरूर नोट करके चलिएगा. वो कीवर्ड्स बहुत इंटीग्रल रोल प्ले करेंगे वेदर यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स और वेदर यू आर गोइंग टू लूज द मार्क्स. अगर वो कीवर्ड्स आपने लिख दिए हैं तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलना तय है. जब आप वो कीवर्ड्स मिस करेंगे तभी आप वो मार्क्स भी मिस करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, B1b का सब पार्ट 2. अ मेटेलिक वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम. बच्चों यहाँ पे एक मेटेलिक वायर दिया है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है. इज बेंड इन फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट सर्किल. तो उसको बेंड कर दिया गया किस फॉर्म में, एक कंप्लीट सर्किल के फॉर्म में. तो मैं एक ये वायर बना लेता हूं बच्चों, एक वायर ले लेता हूं, उसको सर्किल फॉर्म में बेंड कर देता हूं. अब मुझसे पूछ रहा है कि किन्हीं भी दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स. तो यहाँ पर दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मैंने ले लिए. एक पॉइंट को मैं ए कह देता हूं, दूसरे पॉइंट को बी कह देता हूं. ये दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के क्रॉस मुझे नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो बच्चों ये पूरे वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है. तो भाई आधा वायर जो ये बचेगा, इस आधे वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये जो आधा वायर जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 10 ओम. ठीक बात है. और बच्चों जो बचा हुआ नेक्स्ट हाफ राउंड ऑफ द वायर है, तो इसका भी रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा. तो यहां पर तुम देखोगे कि ये 10 ओम रेजिस्टेंस यहां का और 10 ओम रेजिस्टेंस ये वाला, ये दोनों नेट रेजिस्टेंस 10 ओम और 10 ओम आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं. कैसे पता चलता है ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तुम देखो यहां पर ये नोड हो गया और ये भी नोड हो गया. तो इन दोनों नोड्स के अक्रॉस दोनों के एक एक एंड आपस में कनेक्टेड. इसका ये एंड यहां पर कनेक्टेड, इसका ये एंड यहां पे कनेक्टेड है. ठीक है. सो दैट इज व्हाई दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन रिप्लेस दिस डायग्राम एज इक्विवेलेंट टू 10 ohm resistance connected over here, another 10 ohm resistance connected in the down. Okay, this is point A, this is point B, both the resistance are of 10 ohm, and now the net resistance are connected in parallel. So you know whenever the resistances are connected in parallel, then the net resistance can be written as 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2. अगर बच्चों ये फॉर्म आपको नहीं मालूम तो प्लीज ध्यान से नोट कर लीजिए. दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, और one can write down Rp as R1 R2 upon R1 plus R2. इसको सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया. तो Rp जो आता है बच्चों किसके बराबर हो जाता है, R1 plus R2 के बराबर हो जाता है. सॉरी, R1 into R2 upon R1 plus R2 के बराबर हो जाता है. Now what I need to do, I need to substitute those values over here. So Rp net resistance will be R1 R2. R1 बच्चों कितना है, वो भी 10 ओम का है, और R2 बच्चों कितना है, वो भी 10 ओम का है. तो 10 into 10 ohm upon
R1 plus R2 कितना हो गया 10 plus 10 and that is 20 ohm. So 10 into 10 is 100 ohm divided by 20. When you solve it out, it comes out to be 5 ohm. बच्चों again a word of caution. जब कभी भी आप आंसर लिखें तो आंसर मस्ट बी फॉलोड विद द यूनिट. अगर आप इस यूनिट को भूल जाओगे तो फिर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. कोई भी न्यूमेरिकल आंसर विदाउट अ यूनिट विल नॉट बी अवॉर्डेड विद द मार्क्स. काउंसिल का रूल एकदम क्लियर है. आंसर a numerical answer must be followed with its proper unit or else you lose the marks. So this is the question number 2 from 1B sub part. Hope this is clear to all of you. Okay student, let's see what the third question says. The third question says that how can a moving galvanometer be converted into a voltmeter. तो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि how can one convert a moving galvanometer into an moving coil galvanometer into a voltmeter. ना बच्चों एक छोटा सा चीज ध्यान रखना है आपको. एक छोटा सा मैं फॉर्मूला हिंट दे देता हूं जो कि आपको हेल्प करेगा कभी भी इसको आंसर करने में, और वो है सिंपली VHS. ठीक है बच्चों, तो क्या ध्यान रखना है आपको, VHS. V stands for voltmeter, H stands for a high resistance, and S stands for series. ठीक है बच्चों, तो अब ये एक छोटा सा आपको निमोनिक टाइप का याद रखना है, VHS. So what does it stand for? Voltmeter high resistance series. So how do you convert a moving coil galvanometer into a voltmeter? So in order to convert, the answer that is expected from you, in order to convert a moving coil galvanometer into a voltmeter, what you do, you need to connect a high resistance in series to a galvanometer. So सीधा सा आंसर है बच्चों. आपको एक छोटी सी बात को ध्यान रखना है, VHS, and that solves the problem. So in order to convert a moving coil galvanometer to a voltmeter, you need to connect a high resistance in series to a galvanometer. तो बच्चों अगर इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पूछे, यहाँ तो उसने पूछा हाउ, तो यू कैन राइट डाउन इन वर्ड्स, और साइमल्टेनियसली व्हाट यू कैन डू, यू कैन गिव अ डायग्राम ऑल्सो. तो बच्चों ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, सिंबल होता है G का, कैपिटल G, और इसको अगर मुझे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, एक हाई रेजिस्टेंस को इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में जोड़ देता हूं. तो ये एक हाई रेजिस्टेंस है RH, H स्टैंड्स फॉर हाई. तो एक ये हाई रेजिस्टेंस जैसे ही मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो ये जो डिवाइस अब आपको मिल रही है गैल्वेनोमीटर विथ अ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, इसी डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे वोल्ट मीटर. तो समझ में आ गया बच्चों कि किस तरह से आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, टू राइट डाउन बियॉट-सवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. नाउ स्टूडेंट्स, बियॉट-सवर्ट्स का स्केलर फॉर्म ज्यादातर आप लोगों को पता होता, खूब आराम से आप लोग याद भी रखते हो, लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे गलती होता है लिखते टाइम. सो प्लीज टेक केयर अबाउट द वेक्टर फॉर्म. स्केलर फॉर्म क्या है बियॉट-सवर्ट्स लॉ का, सबसे पहले मैं स्केलर फॉर्म लिख देता हूं. तो स्केलर फॉर्म है बियॉट-सवर्ट्स लॉ का, बी वेक्टर इज इक्वल्स, सॉरी बी वेक्टर नॉट वेक्टर, स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं तो वेक्टर की बात ही खत्म हो जाती है. सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर. राधर इसको मैं db लिख देता हूं. db इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा
अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये जो फॉर्म है ये बियॉट-सवर्ट्स का स्केलर फॉर्म है, लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है ये हमें लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। डीबी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब आइडियल cross r upon r cube. Now why all these things have been brought up and what gives so much importance to the vector form of Biot-Savart's law? बच्चों जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू एनी करंट कैरिंग वायर, बियॉट-सवर्ट्स लॉ क्या करता है, ये देता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी करंट कैरिंग वायर। तो किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से कोई भी किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका ये फॉर्मूला है। ये कोई करंट कैरिंग वायर है मान लीजिए, तो इसके एक छोटे से टुकड़े की वजह से, अगर मैं एक छोटा सा टुकड़ा यहां ले लेता हूं, ये एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ द वायर है, तो इसकी वजह से किसी पॉइंट P पर जो इस टुकड़े से R डिस्टेंस पे, एक छोटा सा टुकड़ा है आइडियल करंट एलिमेंट, तो इस छोटे से टुकड़े की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पे प्रोड्यूस होगी वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड dB is equals to mu naught upon 4 pi आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है उसका मैग्नीट्यूड। साथ ही साथ जो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है बच्चों, वो डायरेक्टेड कैसे होती है, वो डायरेक्टेड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। ये डायरेक्शन क्या है इसका, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अब यहीं से इस वेक्टर फॉर्म का इंपॉर्टेंस निकल के आता है, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। यहां पे जब तुम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो बच्चों, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है वो क्रॉस प्रोडक्ट इज इन फैक्ट डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, and that is the reason why whenever you are writing down Biot-Savart's law, in Biot-Savart's law you get this cross product part, because it is also telling me the direction of the magnetic field, and this dB vector has to be directed perpendicularly inside the plane or outside the plane. That means the dB vector will be perpendicular to the plane of ideal in R, so that is why it gets a cross. तो बच्चों ध्यान रखिएगा इसका dB वेक्टर के बारे में। जब कभी भी आप dB वेक्टर को स्टेट कर रहे हो तो वेक्टर फॉर्म में हमेशा इसका क्रॉस प्रोडक्ट ही आता है, सो काइंडली टेक केयर अबाउट दिस। इसके बारे में और डिटेल आपको मेरे थ्योरी के वीडियोस में मिल जाएगा, सो यू कैन वॉच इट ओवर देयर इन द मैग्नेटिज्म वीडियो, स्पेशली दिस cross product part, and that will help you to understand. But anyway, simply for writing down the answer, the Biot-Savart's law in vector form is stated over here. So this is Biot-Savart's law in vector form. Now let's move on to the next question, and that says, what is the phase difference between any two points that happens to lie in the same wavefront? Now बच्चों ह्यूजेंस की वेव थ्योरी अगर आपने पढ़ी हुई हो, तो ह्यूजेन की वेव थ्योरी में ह्यूजेन gave the definition for wavefront, or how has he defined the wavefront? We need to understand that part. So Huygens defined wavefront as locus of all the points that happens to lie in the same phase. तो बच्चों ये डेफिनेशन ह्यूजेन ने दी थी वेवफ्रंट की। क्या कह रहा है ह्यूजेन? कह रहा है इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच हैपेंस टू लाई इन द सेम फेज। तो वेवफ्रंट जो सरफेस आपका तैयार होता है, ह्यूजेन ने कहा कि वो सरफेस उन पॉइंट्स को जोड़ के बनता है जो पॉइंट सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं, व्हिच आर इन द सेम फेज ऑफ वाइब्रेशंस।
यहाँ पे पेपर सेटर ने बहुत इंटेलिजेंटली इस क्वेश्चन को फ्रेम किया। उसको कहता है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स दैट हैपेंस टू लाई ऑन द सेम फेज, सॉरी विच हैपेंस टू लाई ऑन द सेम वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का फेज डिफरेंस वो पूछ रहा है। अरे वेव फ्रंट है क्या? वेव फ्रंट तो उन्हीं पॉइंट्स को जोड़कर ऑब्टेन्ड हुआ सरफेस है जो कि सेम फेज में थे। अगर पॉइंट सेम फेज में है, इफ पॉइंट्स आर in the same phase, then the phase difference will be zero। तो देखोगे बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इनडायरेक्ट वे से पूछा गया क्वेश्चन है, इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होगी क्योंकि बच्चे ज्यादातर वेवफ्रंट की डेफिनेशन याद कर लेते हैं, वो इस बात को नहीं समझते कि वेवफ्रंट था क्या। इस वजह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चों को प्रॉब्लम हुई है 2020 में, और मेजॉरिटी बच्चों ने यहाँ पर मार्क्स लूज किया था। So what will be the phase difference between any two points? So if the points are on the same phase, then the phase difference will be zero, and wavefront is nothing but the locus of all those points which were in the same phase. Hence the correct answer of this question will be 0. Next question, simple straightforward, name the, simply you have to name, ठीक है ना बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको सिंपली नेम करना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। नेम द फिजिकल प्रिंसिपल ऑन विच द ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स। बच्चों ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है उसका आपको नाम लिखना है। तो अगर आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी हुई है तो वहां पर आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर किसके ऊपर वर्क करती है बच्चों? तो वो वर्क करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जरूर रेफर करिएगा। तो व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स? तो करेक्ट आंसर विल बी द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बच्चों। सो होप करता हूं कि ये भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लीज काइंडली रेफर टू योर बेसिक थ्योरी बुक and look for optical fiber in the chapter of Snell's law of refraction। तो रिफ्रैक्शन के चैप्टर में आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा और वहां पर आपको इसके पूरी डिटेल डिस्कशन मिलेगा किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है। बट यहाँ पर सिंपल से मुझे आंसर चाहिए, नेम द बेसिक प्रिंसिपल। सो द बेसिक प्रिंसिपल हैपेंस टू बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द बी पार्ट एंड दैट इज व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन। बच्चों ये न्यूक्लियर से एक चैप्टर, न्यूक्लियर एनर्जी करके चैप्टर है या न्यूक्लियर फिजिक्स करके चैप्टर है आपके टेक्स्ट बुक का। तो उसमें है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर एनिहिलेशन। तो हर साल ऑल्टरनेटिवली या तो पेयर प्रोडक्शन पूछा जाएगा या पेयर एनिहिलेशन पूछा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए पेयर प्रोडक्शन करता क्या है। चलिए समझते हैं पेयर प्रोडक्शन के बारे में। सो पेयर प्रोडक्शन इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ गामा फोटोन ऑफ एनी energetic gamma photon। now यहां पे एनर्जेटिक गामा फोटोन की जो एनर्जी होनी चाहिए बच्चों, वो एनर्जी ग्रेटर देन 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तो अगर आप ये लिख देंगे तो थोड़ा आपका आंसर और बेटर साउंड करेगा। तो व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन? कन्वर्जन ऑफ एनी एनर्जेटिक गामा फोटोन इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पोजिट्रॉन। तो इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पोजिट्रॉन। तो बच्चों यहां पर हो क्या रहा है, यहां पे एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मास। सो दिस इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मास। तो ये फिनोमेना होता है आपका पेयर प्रोडक्शन में। तो उसमें हो क्या रहा है कि गामा फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन एंड पोजिट्रॉन के पेयर में कन्वर्ट होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन? पेयर प्रोडक्शन इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ एनी एनर्जेटिक गामा फोटोन इनटू
इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अगर आप एनर्जी मेंशन कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, अगर एनर्जी नहीं भी मेंशन करते हैं तो भी चलेगा। आप सिंपली इतना लिख दीजिए, कन्वर्जन ऑफ एनी एनर्जेटिक गामा फोटोन इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। या ऑल्टरनेटिवली आप एक डायग्राम बना सकते हैं। तो लेट्स सी दैट डायग्राम आल्सो। व्हाट यू कैन डू इन दिस डायग्राम, यू कैन शो gamma photon. This is a gamma photon, h nu. Mention the energy if possible for you to remember. 1.02 million electron volt comes, and when it reaches a heavy nucleus, so this is the nuclei, okay, this must be shown. It is in the presence of a heavy nuclei that this is going to take place. Then what happens, we get this gamma photon gets converted into an electron E minus and a positron that moves in the opposite direction with E plus. So this diagram can also be utilized in order to illustrate a pair production, और alternatively आप क्या कर सकते हो बच्चों, इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, तो अब इक्वेशन भी आप लिख के काम कर सकते हैं। तो गामा फोटोन और गामा या h nu getting converted into electron 0 minus 1 plus a positron and 0 plus 1. So this is the equation also to illustrate pair production. तो बच्चों ये बहुत ही वेग सा क्वेश्चन था, व्हाट इज पेयर प्रोडक्शन। तो आपके पास कई तरीके थे आंसर को लिखने के। आप इन वर्ड्स डिस्क्राइब कर सकते थे, आप डायग्रामेटिकली बता सकते थे पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, या आप इक्वेशन दे सकते थे कि इक्वेशन क्या था उसका, गामा इज getting converted into electron and positron pair. So remember, basically in words you can write down simply as conversion of any energetic gamma photon into electron and positron pair, and that is sufficient enough for us to get 1 marks. Okay, so this was all for year 2020 question number 1, which was MCQ based and one liner based। बच्चों एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको इस वीडियो से एक इंसाइट मिल जाएगा कि आपको आंसर्स किस तरह से लिखने हैं। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, हिट कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। एंड प्लीज कीप लाइकिंग द वीडियोस, उससे गूगल का एआई आपको मेरे वीडियोस को अरेंज करके देने में आपको मदद करेगा। सो काइंडली कीप लाइकिंग द वीडियो सो दैट यू गेट द फीड फ्रॉम द गूगल एआई नेटवर्क। एंड अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज काइंडली डू दिस। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।